கன்னியகா பரமேஸ்வரி மகளிர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி வளாகத்தில் தேசிய கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது. சென்னை பிராட்வேயில் உள்ள ஸ்ரீ கன்னியகா பரமேஸ்வரி மகளிர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி வளாகத்தில் அகத்தர உறுதி அமைப்பு குழு, இந்தி துறை மற்றும் தமிழ்நாடு இந்தி சாகித்ய அகாடமியின் சென்னை சங்கமும் இணைந்து ஆகஸ்ட் 22/8/2025 அன்று தேசிய கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது. ஸ்ரீ கன்னியகா பரமேஸ்வரி மகளிர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியின் இந்தி துறை மற்றும் இந்தி சாகித்ய அகாடமி இன்று 22/8/2025 தேசிய கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்வில் நாடு முழுவதிலும் இருந்து புகழ்பெற்ற அறிஞர்கள், பத்திரிகையாளர்கள், சமூக செயல்பாட்டாளர்கள் மற்றும் சிறப்பு விருந்தினர்கள் கலந்து கொண்டனர். முதல் அமர்வில் தலைமை விருந்தினராக ஸ்ரீ சந்திரபிரகாஷ் கோயங்கா அவர்கள், சிறப்பு விருந்தினராக ஜெய்சங்கர் பாபு மற்றும் பிரகாஷ் ஜெயின், மகேஷ்குமார் சர்மா, ஆதிஷ் அவர்களுடன் பேராசிரியர் டாக்டர் நிர்மலா எஸ். மௌரியா ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர். மேலும் நடிகை குட்டி பத்மினி உட்பட மதிப்புமிக்க விருந்தினர்களின் பாராட்டு விழா நிகழ்ச்சி தொடங்கியது. இதில் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது அறிவிக்கப்பட்டதுடன் பல சிறப்புமிக்க நபர்கள் கௌரவிக்கப்பட்டார்கள். இரண்டாவது அமர்வில் இலக்கியம், அறிவியல் மற்றும் பிற துறைகள் உட்பட பல்வேறு தலைப்புகளில் விளக்க காட்சிகள் இடம்பெற்றன. இந்த துறைகளில் உள்ள நிபுணர்கள் தங்கள் நுண்ணறிவுகளையும் கண்ணோட்டங்களையும் பகிர்ந்து கொண்டனர். கூடுதலாக ஒரு கவிதை வாசிப்பு அமர்வு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. அங்கு சென்னை மற்றும் பிற இடங்களைச் சேர்ந்த கவிஞர்கள் தங்கள் படைப்புகளை வழங்கினர். சிறப்பாக ஸ்ரீ கன்னியகா பரமேஸ்வரி மகளிர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி மாணவர்களும் கவிதை வாசித்தனர். இது மிகவும் பாராட்டத்தக்கதாக அமைந்தது. இந்த கருத்தரங்க நிகழ்வில் தேசிய கருத்தரங்கில் கல்லூரி தாளாளர் ஸ்ரீ ஊட்டுகுரு சரத்குமார் அவர்கள், பொறுப்பு முதல்வர் முனைவர் பி. வனிதா அவர்கள், துணை முதல்வர் முனைவர் M.V. நப்பிண்ணை அவர்கள், அகத்தர உறுதி அமைப்பு குழு ஒருங்கிணைப்பாளர் முனைவர் பி. பரணிக்குமாரி அவர்களுடன் இந்தி துறை பேராசிரியர் முனைவர் மதுவினை அவர்களுடன் மற்ற துறை பேராசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்களும் பங்கேற்றனர். தேசிய கருத்தரங்கம் மிகவும் வெற்றிகரமாக நிறைவு பெற்றது. நிகழ்வு அனைத்து பங்கேற்பாளர்களுக்கும் நுண்ணறிவூட்டும் நிகழ்ச்சியாக இந்த கருத்தரங்க நிகழ்ச்சி அமைந்தது என தெரிவித்தனர். Happy morning to all. This is Dr. P.B. Vanitha, the principal in charge of Sri Kanyaka Parameshwari Arts and Science College. Today, SKPC Department of Hindi, in association with Tamil Nadu Sahitya Academy, is organizing a one-day national seminar, Kavi Sammelan and Samman Samaro, to commemorate the 200 years of Hindi journalism. On this occasion, many scholars and eminent journalists from throughout the India have arrived here. Out of that, many, even Kuti Padmini is along with us, and today we are even honoring the people for their life achievement and for their contribution in journalism. Now सुप्रभात, मैं डॉक्टर मधु विनय, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, श्री कन्यका परमेश्वरी कला एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय। बड़े ही हर्ष का विषय है कि हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में तमिलनाडु हिंदी साहित्य अकादमी और श्री कन्यका परमेश्वरी कला एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार, सम्मान समारोह और कवि सम्मेलन का आयोजन यहाँ कन्यका परमेश्वरी कॉलेज के प्रांगण में किया जा रहा है। इस पावन अवसर पर देश भर से विभिन्न कवि, लेखक, साहित्यकार, समाज सेवी सभी यहाँ पधारे हैं और आज 10 बजे से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें कई वरिष्ठ पत्रकारों को भी सम्मानित किया जाएगा और कई पत्रकारों को हिंदी शिक्षण के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट जीवनोपलब्धि सम्मान से भी सम्मानित किया जा रहा है। और भी कई लोग हैं देश के विभिन्न शहरों से आए हुए, उनका भी सम्मान किया जा रहा है। और कार्यक्रम के अंत में कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें चेन्नई नगर के मशहूर कवि लोग आएंगे और अपनी कविता का पाठ करेंगे और कॉलेज महाविद्यालय की कुछ छात्राएं भी इस कार्यक्रम में कविता पाठ करने वाली हैं। धन्यवाद। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न नगरों से तकरीबन 150 से अधिक अतिथिगण शामिल हो रहे हैं और चेन्नई शहर के ही काफ़ी कविगण भी इस कार्यक्रम में कवि सम्मेलन में की शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ पधार रहे हैं। प्रोफेसर P.K. झा प्रेम, सह सचिव स्वामी चिदात्मन वेद विज्ञान अनुसंधान संस्थान सिमरिया धाम, बिहार, इसमें पधारा हूँ। तमिलनाडु हिंदी साहित्य अकादमी के महासचिव
परमादरणीय डॉक्टर ईश्वर करुण जी के आदरणीय स्नेहपूर्ण आमंत्रण पर यहाँ के एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार जो पत्रकारिता के 200 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं उसी पर आयोजित, जिसमें कई सत्रों में कार्यक्रम होने हैं। उद्घाटन सत्र पत्रकारिता की संगोष्ठी और तृतीय सत्र सर्वभाषा कवि सम्मेलन, जिसमें मैं विशिष्ट अतिथि के रूप में आपके बीच रहूँगा। आशा करता हूँ हमारा हिंदी संपूर्ण भारत में अपना नाम करे और इसकी एक कड़ी एक मिसाल आज का यह सेमिनार संगोष्ठी साबित हो। इसमें अपने सभी चाहने वाले हिंदी भाषा भाषियों से आग्रह है, भाषा में प्रेम सिखाता है और मेरा नाम प्रेम है। यह प्रेम संदेश कबूल करें और भाषा से भाषा का विस्तार करके भारत को विश्व के मानचित्र पर स्थापित करें। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मैं चंद्र प्रकाश गोयनका कोयम्बटूर से हूँ और हिंदी के विषय में क्या बोलने, ये अपनी राष्ट्रभाषा है, इसको हम सभी को प्रोत्साहन करना चाहिए। तमिलनाडु में इसका चलन ज़्यादा नहीं है, इसके लिए ईश्वर जी, हमारे निर्मला जी, डॉक्टर साहिबा, ये लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। मैं तो यही कहूँगा कि आने वाली पीढ़ी भी अपना प्रचार प्रसार हमेशा करते रहे और हिंदी भाषा को विश्व भाषा बनाए। धन्यवाद। मैं प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य, पूर्व कुलपति पूर्वांचल विश्वविद्यालय और तमिलनाडु हिंदी साहित्य अकेडमी की अध्यक्षा हूँ। आज ये बड़ी खुशी का दिन है कि एक दिन का ये हमारा कार्यक्रम हो रहा है, पत्रकारिता का वैश्विक परिदृश्य और सम्मान समारोह भी है। बाहर से मद्रास के अलावा अन्य स्थानों से भी हमारे विद्वानगण यहाँ पधारे हुए हैं, आप देख सकते हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी का कि आप मुख्य अतिथि के रूप में और अन्य के रूप में यहाँ पधारे हुए हैं। ये कार्यक्रम हिंदी भाषा और अन्य भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। सुबह उद्घाटन सत्र है 10 बजे से, जहाँ पर विद्वानों का जो हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं उनका सम्मान होगा। उसके पश्चात द्वितीय सत्र में वैश्विक पत्रकारिता का वैश्विक परिदृश्य, इस पर पत्रकार पधारे हुए हैं भारत के अन्य शहरों से। वो अपने विचार इस पर प्रस्तुत करेंगे, प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और डिजिटल मीडिया पर। उसके पश्चात शाम को 5 बजे से कवि सम्मेलन है, जो विभिन्न प्रकार के हमारे विद्वान हैं और कविगण हैं, पूरे भारतवर्ष से यहाँ आए हुए हैं। ये बहुत खुशी का दिन है और हम सभी यहाँ उपस्थित हैं और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हुए आज के कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। धन्यवाद। ये जो कार्यक्रम है, कहते हैं ना कि यदि मन में कोई इच्छा हो तो कार्यक्रम सफल हो जाता है। श्री कन्यका परमेश्वरी आर्ट्स एंड साइंस महिला महाविद्यालय के इस सभागार में, इस कैंपस में कार्यक्रम हो रहा है और हमारी प्राचार्य महोदया हमारे साथ आगे आए, आप यहाँ पर खड़ी हुई हैं। हमारे करस्पॉन्डेंट्स भी अभी आ जाएंगे और मुझे बहुत खुशी है कि हम लोगों ने जो इच्छा व्यक्त की, हमारे इस महाविद्यालय ने बड़ी खुशी के साथ हमारा सहयोग किया है। मैं अपनी संस्था की ओर से और सभी हिंदी प्रेमियों सुधीजनों की ओर से इस कॉलेज के प्राचार्य महोदया क्या और जितने भी हमारे अधिकारीगण हैं इस कॉलेज के, सभी को धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। मैं तमिलनाडु हिंदी साहित्य अकादमी का महासचिव हूँ। எனக்கு பேர் ஈஸ்வர் கருண். நான் இங்கே வடபழனியில் இருக்கேன். எனக்கு சொந்த ஊர் மிथिலை, தமிழ்நாட்டில் 40 இயர்ஸில் இங்கே இருக்கேன். Hindi is most important, especially for Tamil Nadu. Why? Because with Hindi translation, our classics of Tamil may only reach all world and especially the entire country, because you know that our states, they don't have Tamil knowledge. So Tamil classics and another features of the Tamil cultural specialties of the Tamil, these all is being translated in Hindi and we are also playing a major role. So we feel that हिंदी ज़रूरी है। अनुवाद के माध्यम से तमिलनाडु को जानने के लिए, तमिल को जानने के लिए, तमिल के शास्त्रीय जो पुस्तकें हैं उनको जानने के लिए। और दिस इवेंट इज स्पेशली 200 years completion of Hindi journalism. Hindi journalism started in 1825 at Kolkata, and the first Hindi newspaper was there, Udant Martand. And in Chennai also, the first Hindi newspaper was published. That name was Jordar, and later another Chamakta Sitara. And now today there are the 3 daily newspaper in Hindi that is bringing out from the Tamil Nadu. And
It's covering all the features and specialties of Tamil Nadu, either political, social and all. हिंदी पत्रिकाएं, राजस्थान पत्रिका, दक्षिण भारत और ख़ास करके दक्षिण भारत राष्ट्रमत और दक्षिण प्रकाश, और हमारे बगल के दक्षिण के राज्य हैदराबाद से हमारे वहाँ के चीफ इंचार्ज हैं यहाँ मौजूद, डेली हिंदी मिलाप। और इसी तरीके से बेंगलुरु से इंडिया टीवी के हमारे वरिष्ठ एडिटर वो हैं। तो साउथ से जो हिंदी पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं, उन पत्रिकाओं के द्वारा जो तमिल को, दक्षिण भारत को, तेलुगु को, कन्नड़, मलयालम को जो योगदान दिया जा रहा है, उसके विशेष अवसर पे हम यहाँ दक्षिण के पत्रकारों को सम्मानित कर रहे हैं। वी आर ऑनरिंग द साउथ इंडियन हिंदी जर्नलिस्ट, स्पेशली एंड पर्टिकुलरली ऑफ तमिलनाडु एंड चेन्नई। थैंक यू। नमस्ते, मैं डॉक्टर जवाहर कर्नावट आज चेन्नई में हूँ और हमें बहुत खुशी है कि आज तमिलनाडु हिंदी साहित्य अकादमी और इस प्रतिष्ठित महाविद्यालय में ये हिंदी सम्मेलन और ख़ासकर हिंदी की वैश्विक पत्रकारिता पर आयोजित किया गया है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि तमिलनाडु में इस प्रकार का आयोजन करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर मैं भोपाल से रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय से हूँ और देश के अनन्य प्रतिष्ठित विद्वान यहाँ पर आए हुए हैं। तो इस प्रकार जिस प्रकार भारत में हमारी 22 भाषाएं हैं, जितना महत्व हमारा हिंदी का है उतना ही हम तमिल का भी मानते हैं। तो ये एक तरह से भारतीय भाषाओं का संगम भी है, जिससे विभिन्न भारत के भाषी लोग हैं, जो विद्वान हैं, वो अपने विचार यहाँ पर व्यक्त करेंगे। तो मैं यहाँ की महाराष्ट्र हिंदी जो तमिलनाडु हिंदी साहित्य अकादमी उसको बधाई देता हूँ और इस महाविद्यालय को बधाई देता हूँ कि इन्होंने इतना सुंदर आयोजन यहाँ पर किया है और हम इस आयोजन से बहुत प्रसन्न हैं। धन्यवाद। मैं राकेश पांडे, मैं प्रवासी संसार पत्रिका का संपादक हूँ और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि तमिलनाडु में तमिलनाडु हिंदी साहित्य अकादमी ने यह कार्यक्रम परमेश्वरी विश्वविद्यालय में आयोजित किया है, जो कि एक वैश्विक पत्रकारिता पर है। वैश्विक पत्रकारिता पे जब हम बात कर रहे हैं तो हम तमाम भारतीय भाषाओं की बात करते हैं, उसमें से एक हिंदी है। और तमिलनाडु में यह कार्यक्रम होना अपने आप में हिंदी को और भारतीय भाषाओं के महत्व को रेखांकित करता है, पूरी भारतीयता को एक हमारे सूत्र में पिरोता है। तो मुझे लगता है कि इस विश्वविद्यालय का और हिंदी साहित्य अकादमी का, तमिलनाडु हिंदी साहित्य अकादमी का यह बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि यह कार्यक्रम सफल होगा और इससे भारतीय एकता, भाषाई एकता के नए सूत्र निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस संस्था के उपाध्यक्ष हूँ, मेरा नाम हुसैन वली है, डॉक्टर हुसैन वली है। और నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇక్కడ శ్రీ కన్యకా పరమేశ్వరి ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కాలేజీలో और మరియు हिंदी साहित्य तमिलनाडु हिंदी साहित्य अकादमी संयुक्त तत्वाधान में మేము వచ్చేసి ఒకరోజు సంగోష్ఠి ఇక్కడ చేస్తున్నాము। చాలా సంతోషంగా ఉంది। ఇక్కడ కరస్పాండెంట్ గారు और ప్రిన్సిపల్ గారు మాకు చాలా సహాయం చేసినారు। మేము వారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము। చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది। मैं अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन से तमिलनाडु प्रांत की अध्यक्ष शारदा अग्रवाल बोल रही हूँ। हमारे साथ हमारे पूरे पदाधिकारी एवं सदस्यगण हैं। हम लोग यहाँ पे पूरा सोशल वर्क करते हैं। 4 प्रकल्प पे हम लोग काम करते हैं, पर्यावरण, बाल विकास, नारी सशक्तिकरण और अंगदान देहदान पे। आज हम अपने को बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हम आज इस हिंदी प्रचार सभा से जुड़े और इस सभा से जुड़ने के लिए हमें ईश्वर जी ने बहुत आग्रह किया और हम लोगों को आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम तमिलनाडु में हिंदी प्रांत से जुड़े हैं। तो मैं ईश्वर जी को तहे दिल से बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। हम आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, इसके लिए हम ईश्वर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं कि आगे भी इसी संस्था के साथ आगे जुड़े रहे। हम तमिलनाडु से हैं, लेकिन फिर भी हमारे दिल में हिंदी का एक अलग ही, इस तमिल देश में रहकर भी हमें अपने हिंदी को प्रोत्साहित करना है। इसके लिए हम हर बार इस संस्था से जरूर जुड़ेंगे। धन्यवाद। என் பேர் ஆர் பார்வதி, நான் கனிபுரா பொது நூலகத்தில் அசிஸ்டன்ட் லைப்ரரியனாக இருந்து ரிட்டையர் ஆகியிருக்கேன்। ஹிந்தி டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து ஹிந்தி மொழி படிச்சிருக்கிறேன்। ஹிந்தியில் வந்து நான் நிறைய டிரான்ஸ்லேட்லாம் பண்ணியிருக்கேன்। கோவா கவர்னரோட புத்தகத்தை பரித்தப்த லங்கேஸ்வரி மிதுலா சின்ஹாவோட அவங்களோட புத்தகத்தை நான் தமிழில் பரித்தவத்த லங்கேஸ்வரி என்று நான்
மொழிபெயர்த்திருக்கிறேன். அது இல்லாமல் ஹிந்தி அத்தியதா கோஷ் ஆக்ராலேருந்து வந்திருக்கு. இங்கே தமிழ்நாட்டில் வர ஹிந்திக்காரங்க டூரிஸ்ட்டுக்காரங்களுக்கெல்லாம் தமிழ் எப்படி பேசணும் என்ன இது பண்ணணுன்னு அதை பற்றி ஒரு புக்கு நாங்கள் ஃபுல் ஒரு டீமோடு சேர்ந்து நாங்கள் இப்போ தான் போன வருடம் தான் 2019 தான் ரிலீஸ் பண்ணுறேன். அதில் தான் நான் நிறைய மொழிபெயர்ப்பு பண்ணியிருக்கிறேன். கதைகளில் கவிதைகள் எல்லாம் நான் மொழிபெயர்த்துருக்கிறேன். அதான் இவன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அந்த பணி வந்து நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ரொம்ப வருஷமாக இருந்த காலேஜ் நிறைய பேர் இங்கே இருக்கிறாங்க. நிறைய எங்கள் ஊரில் இருக்கிற ஆளுங்கள்லாம் நிறைய பசங்க இங்கே தான் படித்து நல்ல நிலையில் இருக்காங்க. இந்த காலேஜ் ரொம்ப ஃபேமஸான காலேஜ். கன்னிகா பரமேஸ்வரினா இங்கே தெரியாதவங்களே இல்லை. அந்த அளவுக்கு இது ரொம்ப நல்ல நடுத்தரமாக இருந்து வரவங்களுக்குலாம் ப்ராட்வேலேருந்து இறங்கி வரதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது. நிறைய பெண்கள் எங்கள் சொந்தக்காரங்களே பசங்களாம் நிறைய இங்கே தான் படிச்சிருக்காங்க. நன்றி. வணக்கம், நான் டாக்டர் மீனா கிருஷ்ணன். நான் हिंदी प्रचार सभा डॉक्टर बेस हिंदी प्रचारक प्रशिक्षण महाविद्यालय प्रिंसिपलाக இருந்தேன். ஒரு 34 இயர்ஸ் வரைக்கும் வேலை செஞ்சேன். அங்கே ஹிந்தி டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஹிந்தி பிரச்சார சபாவில் நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸிலும் நான் அங்கே ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஹிந்தி இங்கே எனக்கு சந்திராவதி வேதகுமாரி அவார்டு அது எனக்கு சம்மானம் பண்ணுறாங்க. தமிழ்நாடுல ஹிந்தி ரொம்ப தேவை. ஹிந்தி அது நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ஃபுல் இந்தியாவில் எங்கேனா போனால் நமக்கு ஹிந்தி தேவை. அது மாதிரி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு கூட ஹிந்தி தேவை. ஹிந்தி நேஷ்னல் லாங்குவேஜ் அது தேவை நமக்கு. இந்த காலேஜ் ரொம்ப ஃபேமஸ் காலேஜ். இங்கே இருக்கிற பிரின்சிபல்ஸு, கரஸ்பாண்டன்ட்ஸ், டீச்சர்ஸ், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்காங்க. ரொம்ப நல்ல காலேஜ். இங்கே நிறைய பேர் படிக்கிறாங்க. அதுதான் நான் சொல்கிறேன். அதுக்காக தான் இங்கே ஹிந்தி படிக்கணும். அதுக்காக ஹிந்தி பிரச்சார் பிரசார் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.